Hello everyone, welcome back in a more video. And in this video I am going to discuss about portfolio, how you can create a great portfolio, how you can create a job winning portfolio, because a great portfolio is also one of the most important aspect of your professional career. If you have a great portfolio, then it's really help you to a lot to grabbing a job in terms of your first job, in terms of the switch, in terms of remote, in terms of India and international as well, right? So let's start a video. Let's start. So first of all, understand one thing. एक चीज समझिए. Most of the people think about portfolio is kind of a heavy CSS, animation, media queries, responsiveness and design and all, right? पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं होता है जस्ट हैवी CSS, डिज़ाइन, एनिमेशंस एंड काइंड ऑफ लॉट ऑफ UI UX रिप्रेजेंटेशन ऑन अ वेब, राइट? This is completely wrong statement, wrong hypothesis in terms of portfolio. Portfolio means you just showcase your skills, showcase your work, contribution straightforward and that all things are live, right? जो कि एक वेब पे लाइव है जहाँ से आपका काम देखा जा सकता है. This is the meaning of portfolio, right? Recruiter never interested in terms of the how you are using the great UI UX, how you can create a great animation. नहीं, that's only interested to show how which kind of skills you have, which kind of contribution you have, which kind of experience you have, right? So instead of wasting a time to focusing on this thing, just focus on how you can represent your skills, your experience straightforward in a easy way so that recruiter have a directly access and see your work, right? With a proof of work, right? This is the meaning of portfolio. And also इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, मैं अपना इवन खुद का पोर्टफोलियो आप लोगों से शेयर करूंगा. एंड यू कैन सी on the basis of my portfolio I can grab a lot of opportunity in terms of remote, in terms of international, in terms of as a contractor, full-time, intern, right? I have a lot of opportunity and these all opportunity I just only generate a lead on the basis of my portfolio. So इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीज़ डिस्कस करूँगा. एंड if you think you are just start building your portfolio, or if you think you have a portfolio but you want to revamp, then this video is really helpful for you. ये आपको काफ़ी मदद करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिवैम्प करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को बनाने के लिए. यू कैन ऑल्सो अवॉइड दोज मिस्टेक जो मैं इसके अंदर आपसे डिस्कस करूँगा, राइट? सो first thing, from the last couple of year I review a lot of portfolio in terms of experienced candidate, in terms of fresher, and I have seen the some common mistakes जो हर कोई repeat कर रहा है in terms of experienced person, in terms of fresher, and I summarize all the things जो कि मैंने सारी चीज़ों को summarize करके 5 common mistakes बनाई है. and these mistakes 99% in case of 99% student, doesn't matter वो fresher है कि experienced candidate है, जो उसको repeat कर रहा है बार बार. and in this video we are just going to discuss all the 5 mistakes and how can minimize this mistake, how can avoid this mistake so that we can make a great portfolio, right? So इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे. बिकॉज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आई विल ऑल्सो गिव यू द लाइव प्रूफ. मैंने इस मिस्टेक्स को अवॉइड करके पहले मैंने खुद मिस्टेक करी है एंड आफ्टर आई रियलाइज दैट जस्ट इम्प्रूव इट. मैंने इम्प्रूव किया एंड जस्ट रिवैम्प माई एंटायर द पोर्टफोलियो. एंड आफ्टर रिवैम्पिंग आई जस्ट पोस्ट ऑन द ट्विटर. मैंने वहाँ पोल डाला ट्विटर पे, अपना पोर्टफोलियो डाला एंड आई टेक अ लॉट ऑफ reviews. I received a lot of reviews regarding that. Great straightforward UI UX, simple UI UX, straightforward focus on the hardcore skill set. and वहाँ से मुझे पता चला कि what is the meaning of actual portfolio, right? उसका actual portfolio का मतलब क्या होता है. I realized that and I learned from my portfolio journey. How can I build this so that I can discuss this in this video as well as, right? So start करते हैं बेसिकली. और हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, उसी पोर्टफोलियो के बेसिस पे मैंने मल्टीपल जॉब्स अपॉर्चुनिटी लीड जनरेट करी है विदाउट इवन रिज्यूमे, राइट? तो वो चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ मिस्टेक्स. सो मिस्टेक नंबर 1, always remember before starting a mistake I just forget one thing. Portfolio is kind of your 24/7 live resume, you can say, right? What is the meaning of 24/7 live resume? It's kind of, you can say, the web resume जो कि web पे live रहता है, right? and वहाँ पर recruiter और you can say interviewer
able to see your work, able to access your all the skills in terms of experience, contributions, project and all. जहाँ पे आप अवेलेबल नहीं हो वहाँ पे आपका 24/7 वो वेब रेज्यूमे अवेलेबल है, जहाँ से रिक्रूटर और इंटरव्यूअर आपके काम को देख सकता है. एंड if recruiter or interviewer interested, then they will contact you कि we have a one opening, we have a one similar opening that match with your technical skill set, so are you interested kind of stuff, right? So कभी भी इसको एक तरीके से आप एक रूम के जैसा समझो, जिस रूम के अंदर आप नहीं हो बट योर अवेलेबिलिटी विल एग्जिस्ट, राइट? आप नहीं हैं बट आपकी अवेलेबिलिटी एग्जिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ योर पोर्टफोलियो. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑलवेज रिमेंबर, जॉब आज की डेट में मिलना बहुत मुश्किल है. इफ़ यू हैव अ नॉट अ ग्रेट माइंडसेट, ग्रेट आइडियोलॉजी, ग्रेट अप्रोच, देन बहुत मुश्किल है. डजेंट मैटर आपके पास कितनी स्किल्स है, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर. नाउ स्टार्ट करते हैं अब मिस्टेक से. Then we can discuss on the basis of my portfolio, right? So mistake number 1, right? So the first mistake is over focusing on fancy UI. 99% candidate in terms of experience, in terms of experience person, in terms of fresher, right? Always focus, I see, always focus kind of the great UI UX. मैंने देखा है कि स्टूडेंट ग्रेट UI UX पे, एनिमेशंस पे, मीडिया क्वेरीज पे ज़्यादा टाइम देते हैं, जहाँ पे फोटोज़, एनिमेशन, बटन्स, काइंड ऑफ लॉट ऑफ थिंग होती है. लेट मी वन थिंग, recruit never interested in terms of how you are using a great CSS, how you are using a great responsive media query, how you are using a great UI UX. This will never help you to become a job ready person, and this will never generate a lead in terms of job opportunity, right? Always remember, recruiter don't care about your animation, your media queries, your styling and CSS. Recruiter only interested to show your impactful work, your contributions, your experience and your skills in terms of development, in terms of the problem solving, right? रिक्रूटर को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप एक सिंपल वेब पेज बना के दे दो. अगर उस वेब पेज के ऊपर आपका काम है, if you have a heavy lifted work, then no need of a heavy lifted UI. आपका काम ही रिक्रूटर को चाहिए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कैसा बनाया. हाँ, सिंपल UI, सिंपल बेसिक मीडिया क्वेरीज इनफ, राइट? सो always remember, instead of focusing on UI UX, instead of focusing on the design, you need to focus on how you can represent a straightforward your experience, your work, so that recruiter have directly access and just grab attention in terms of your experience and work, right? Always remember, इस बात का ध्यान रखें. So next point, the mistake number 2 is no clarity on role and skills. मैंने बहुत बार देखा है, especially in terms of experienced candidate as well as freshers. We are mentioning a lot of technical skills, lot of stuff, lot of different genres, right? We have not a clear zone. हमारे पास एक clear zone आ जाता है. For example, are you applying for the front end developer, back end developer, full stack, AI ML, DevOps, right? Kind of stuff. हम सब चीज़ों को मेंशन करते हैं. if you see the skills part in a resume, जहाँ पे हमारे पास में सब होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, एज वेल एज डिप्लॉयमेंट थिंग्स, सर्वर काइंड ऑफ स्टफ, जहाँ पे रिक्रूटर को कभी भी 360 यूज़र से और यू कैन से 360 कैंडिडेट से मतलब नहीं है. रिक्रूटर वांट अ नीश, उसको एक नीश चाहिए, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको एक पर्टिकुलर डोमेन में ज़्यादा पता हो, राइट? योर प्रिपरेशन एंड योर स्किल्स ऑलवेज इन द टी फॉर्म. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टी फॉर्म? जैसे टी को आपने देखा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है. हॉरिजॉन्टल मीन्स बहुत सारी स्किल्स, वर्टिकल मीन्स द डेप्थ ऑफ द स्किल्स, राइट? ऑलवेज रिमेंबर. तो कभी भी रिक्रूटर आपको रीच आउट नहीं करेगा अगर आपके पोर्टफोलियो में नीश नहीं. आप किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, किस पर्टिकुलर डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हो. ऑलवेज रिमेंबर, मेक अ पोर्टफोलियो विथ नीश. नॉइस के साथ नहीं क्रिएट करना है कि मुझे सब आता है. ये आपको अच्छा लगता है कि आपको सब आता है एंड यू थिंक यू आर अ 360 पर्सन एंड यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. नो, रिक्रूटर ऑलवेज फोकस ऑन अ नीश. उसको एक डायरेक्शनल बंदा चाहिए जिसको एक चीज़ें बहुत अच्छे से आती हो. सो यू नीड टू मेक श्योर आप, if you create your portfolio or revamp your portfolio, then you just play on a niche, not kind of a 360, right? So now the third mistake, without real project impact, right? Or you can say project without real impact.
ये उसके लिए है जो फ्रेशर है। एंड द सेम पॉइंट रिप्लेस विथ एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो एक्सपीरियंस विदाउट proof of work, right? You can say, or you can say the proof of design, or you can say the proof of system architecture, right? What is the meaning, मैं बताता हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं तो प्रोजेक्ट बनाओ प्रूफ के साथ, इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग वैल्यूएबल प्रोजेक्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर मेक अ गुड प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड प्रोजेक्ट? ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ इन माई लास्ट वीडियो। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है हाउ यू कैन क्रिएट अ ग्रेट प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन थिंक अ ग्रेट प्रोजेक्ट, हाउ यू कैन बिल्ड अ ग्रेट फीचर सो दैट यू कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ रिक्रूटर, जहाँ पे आप ट्विटर पे पोस्ट करके अपना फीचर दिखा सकते हो। अपने आप किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को, एक बेसिक प्रोजेक्ट को भी एक बहुत इम्प्लीमेंटेटिव हार्ड कोड स्किल्स बेस्ड इम्प्लीमेंटेटिव प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो आप जाके देखिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर यू हैव अ टू वे टू रिप्रेजेंट योर proof of project, proof of work. The first thing you can just live your project, आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर दीजिए and just put a link with the proper kind of proper mention all the points, all the features and all the implementation, heavy implementation part, right? The second thing, create a good readme file, just upload your code base, just create a 4 to 5 minute of video, the working project video, and just upload and create a proper documentation entire your project, right? So this will help to create a authenticity of project, thus verification of project, right? Same thing in terms of experienced person, right? If you are experienced person, then you just mention your experience with some kind of system design, architecture, documentation, so that, or you can say the feature link that you build on your the product, so that recruiter have recruiter see your, or you can say access your work, so that if the recruiter interested, so आपका काम हो जाके देख सकता है, राइट? ये सारी चीज़ें मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर बताऊंगा, so that you have a better idea कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ and how you can avoid these all things, right? In terms of project and experience. Now the mistake number 4. Okay, so the mistake number 4 is missing technical proof. What is the meaning of technical proof? अगर आपने देखा होगा, हम खुद ये करते हैं, वी आर मेंशनिंग अ लॉट ऑफ थिंग in the part of technical. We are mentioning the front end stuff, back end stuff, DevOps stuff, server stuff, right? हमने सब डाल दिया, Kafka डाला है, CI/CD डाला है, DevOps में हमारा Kubernetes डाला है, Docker डाला है, Redis डाला है, back end optimizations के अंदर हमने different complex aggregation tech stack, और you can say approaches and methodology use करिए, heavy lifted words use किया है, but we have not a kind of proof. हमारे पास में प्रूफ नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप DevOps यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स एंड टूल्स, देन इट्स मैंडेटरी आपने DevOps पे काम किया हो, आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क हो, आपने प्रोजेक्ट बनाया हो, AWS पे या फिर Azure पे डिप्लॉयड हो, पाइपलाइन क्रिएट करी हो, सब आर्किटेक्चर बिल्ड किया हो, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करी हो, जहाँ पे आपने स्पाइक हैंडलिंग, सर्वर हैंडलिंग, यूज़र किस तरीके से कितना कंकरेंट यूज़र की हैंडलिंग, राइट, स्पाइक मॉनिटरिंग, सर्वर मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें करी है, then it will help you, right, to create a proof of work, or you can say the proof of technical stuff. Otherwise, agar without proof of work you can mention these all things, so it's completely waste of the time, it's completely waste of just kind of fumbling the things, right? Because recruiter never interested to see these all things without proof. उसको मतलब ही नहीं है. I also give a lot of interview and I also take opinion from the great recruiters, nationally and internationally both, जहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी है कि रिक्रूटर को सिर्फ प्रूफ से मतलब है, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स. अगर आप कुछ लिख रहे हो, देन मेक श्योर उसका प्रूफ हो, इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, इन टर्म्स ऑफ योर kind of skills, right? So अगर आप डायरेक्टली और यू कैन से अनोनिमसली स्किल्स हेवी लिफ्टेड वर्ड्स यूज कर रहे हैं फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, सो माइट बी गुड इन टर्म्स ऑफ योर विजिबिलिटी, बट वो कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मेंशनिंग है. अदरवाइज आपके पास में अगर उसका कोई प्रूफ नहीं है तो ऑलवेज रिमेंबर, राइट? सो द फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक इज no personal story, or you can say the call to action. What is the meaning of this? Basically आपके पास एक छोटी
4 to 5 लाइन की एक शॉर्ट समरी होनी चाहिए. इट्स काइंड ऑफ द हेडर डिस्क्रिप्शन. आपने क्या किया, कैसे किया, कितना किया, राइट. एंड उसी के साथ आपके पास में एक काइंड ऑफ बटन होना चाहिए, और यू कैन से एक लिंक होनी चाहिए जहाँ पे लाइक गेट मी हायर और काइंड ऑफ गेट अ कॉन्टैक्ट. क्योंकि रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं है कि रिक्रूटर जस्ट ट्राई टू फाइंड योर ईमेल और जस्ट ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू, राइट. वो जब तक आपका ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर निकालेगा, रिक्रूटर हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, राइट. सो हमें कहीं से भी लीड मिस नहीं करना है. और यू कैन से हम इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जहाँ से रिक्रूटर का कभी भी एक्सपीरियंस ब्रेक ना हो इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग टू एंड. ऑलवेज रिमेंबर. सो हमें वहाँ पे उसको एक बटन इन टर्म्स ऑफ हायर और कांटेक्ट देना होगा जहाँ से डायरेक्टली हमें वो रीच आउट कर सकता है. ऐसा नहीं कि हम उस पर छोड़ दें तो भाई खुद ढूंढ और हायर कर, वो कभी नहीं करेगा. अगेन डजंट मैटर आप कितने स्किल्ड हैं, क्योंकि उसके पास और भी आपसे बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, राइट. सो ये 5 मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड करके एक बहुत ही बेटर पोर्टफोलियो बना सकते हो और जो आपको रियली हेल्प करेगा टू ग्रैपिंग अ जॉब. सो if you take care about these all the 5 common mistakes, then believe me, you really you can create a great portfolio, and this portfolio help as well to grab opportunity or generate a lead in terms of a job, राइट. सो अब हम एक बार मेरा पोर्टफोलियो देखते हैं एंड हाउ कैन आई अवॉइड दिस ऑल मिस्टेक्स एंड हाउ आई कैन क्रिएट माई पोर्टफोलियो. एज वेल एज मैं लिंक भी दे दूंगा, लाइव लिंक, जहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. और जस्ट टेक अ काइंड ऑफ अ रेफरेंस, कॉपी पेस्ट मत करो चीज़ों को, जस्ट टेक अ रेफरेंस कि मैंने किस तरीके से बिल्ड किया है. यू कैन ऑल्सो ट्राई टू बिल्ड, राइट. सो लेट्स जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई शेयर माई स्क्रीन. सो ये मेरा पोर्टफोलियो है. अगर आप देखोगे, सो आई जस्ट take a reference from single row double column काइंड ऑफ रेज्यूमे टेम्पलेट. मैंने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यूआई रखा है कि रेज्यूमे का. आपने अगर लेटेक्स यूज़ किया होगा और अगर आप सिंगल रो डबल कॉलम रेज्यूमे के बारे में जानते होंगे जो लेटेक्स पे अवेलेबल है, काइंड ऑफ शायद डेडली कुछ नाम करके है, वो पूरा यूआई यूएक्स को मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है. सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक नेविगेशन बार रखा है. कोई डिज़ाइनिंग नहीं, किसी तरीके का कोई एनिमेशन नहीं, कोई हैवी लिफ्टेड यूआई नहीं. सिंपल. जो हैवी इम्पैक्टफुल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है, जहाँ पे मुझे रिक्रूटर का अटेंशन ग्रैब करना है, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा कलरिंग अलग कर दी है ताकि रिक्रूटर डायरेक्टली उसकी आई अटेंशन को मैं ले सकूँ, राइट. नीचे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैंने बताया कि थोड़ी सी एक शॉर्ट स्टोरी काइंड ऑफ स्टफ आपके पास होनी चाहिए, 3-4 लाइन की. अबाउट सेक्शन के अंदर जो मैंने डाल रखा है, जहाँ से मेरे बारे में इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो. नीचे मैंने अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर लिखा हुआ है. मैंने क्या किया है, क्या करने से क्या हुआ, कितना इम्पैक्ट आया, किस तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, किस तरीके का इम्पैक्ट ऐड किया है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड रेवेन्यू एंड ऑल थिंग, एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, राइट. जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, जो मैंने पास्ट कंपनी में काम किया है, उसके साथ मैंने LOR भी ऐड किया है, मीन्स द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाएगा, जो मैंने पिछली प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है वहाँ से मुझे मिला है, राइट. अगेन सेम थिंग, मैंने एक्सपीरियंस को यहाँ पर भी बहुत अच्छे से हैवी लिफ्टेड वर्ड, नॉट जस्ट मेंशनिंग दी, नॉट काइंड ऑफ अ हैवी लिफ्टेड वर्ड, मैंने प्रॉपर वे में बताया है. अब द इम्पॉर्टेंट थिंग, अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड टेक्निकल, सारी चीज़ों का एंड टू एंड प्रूफ है. मैंने जो किया है वही डाला है, जो स्किल्स मेरे पास है उससे रिलेटेड मेरे पास में कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड एक्सपीरियंस भी है, राइट. सो अब एजुकेशन सिंपल. अगेन द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द माई पोर्टफोलियो इज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन. अगर आप मेरा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, जहाँ पे मैंने 4-5 बड़े फीचर्स पे काम किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके अंदर क्या काम किया है वो मेंशन है. एंड उससे इम्पॉर्टेंट प्रूफ ऑफ वर्क मैंने डाला है इन टर्म्स ऑफ लो लेवल एंड हाई लेवल आर्किटेक्चर. अगर आप इस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्लो आर्किटेक्चर दिखेगा, मैंने क्या बिल्ड किया है, कैसे बिल्ड किया है, जो कि प्लेटफॉर्म पे भी जाके, कंपनी के प्लेटफॉर्म पे जाके, प्रोडक्ट पे जाके एक्सेसिबल है, जहाँ से आप मेरा काम देख सकते हो, राइट. सेम थिंग, ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने मेजर कंट्रीब्यूशन किया है वहाँ पे मैंने प्रॉपर मेंशन किया है, प्रॉपर आर्किटेक्चर डाला हुआ है कि मैंने कैसे बिल्ड किया और क्या बिल्ड किया. अगेन मेरा गिटहब स्टैट, कंट्रीब्यूशन, ग्राफ्स एंड ऑल थिंग्स जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, ट्रॉफीज एंड ऑल, जो कि दिखाता है यू आर ऑल्सो एक्टिव इन टर्म्स ऑफ डेव
काइंड ऑफ अ लीड कोड एंड अदर थिंग्स, जहाँ मेरी लीड कोड प्रोफाइल भी ऊपर है, कोडिंग प्रोफाइल भी सारी अवेलेबल है, ऊपर सारे कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, एज अ ड्राइव लिंक मिल जाएगा रेज्यूमे का, मेरा लिंक्डइन, मेरा ट्विटर, मेरा गिटहब, जो भी एक प्रोफेशनल हैंडल्स हैं, मेरे इंपॉर्टेंट हैंडल्स हैं, सारी चीज़ें मेंशन हैं। और इस पोर्टफोलियो को मैंने बहुत से रिक्रूटर से रिव्यू करवाया है एंड दिस फील काइंड ऑफ अ वेब रेज्यूमे। सो दिस इज नोन एज रियल इम्पैक्टफुल पोर्टफोलियो। अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं देन यू हैव अ रियली ग्रेट चांस कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड जस्ट पुट ऑन स्पेशली ऑन ट्विटर, बिल्ड करके ट्विटर पे डालो, जस्ट टेक अ रेफरेंस, टेक अ रिव्यू फ्रॉम द अदर्स, जहां आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये मैंने खुद ने किया है एंड करने के बाद लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है, इम्पैक्ट आया है इन द जॉब हंटिंग, दैट्स व्हाई आई डिस्कस द थिंग एंड दिस इज द अल्टीमेट वीडियो फॉर अ पोर्टफोलियो। इसके बाद भी अगर आप नहीं बना पाते तो आप नहीं बना पाओगे, सॉरी टू से, राइट। So yeah, this is the all about today video and yes,